Hello viewers, welcome to my YouTube channel English Club. Myself Muhammad Bharat Kumar. I am your English educator. Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button. Hi dear learner, today we going to start our second chapter from New Voice textbook, the new alarm clock. So we will learn about means in this story is about a Tina who always come to late to school. Her friends suggest her to use an alarm clock, to which Tina replied that it is of no use. At evening, her friends go to her place and discuss about her birthday gift while returning. Deepa suggests gift an alarm clock to Tina, but Ajay suggests gifting a jigsaw alarm clock to her at 6 o'clock next morning. The clock goes into action with an four-piece of puzzle scattering in the room. All the family members searching the puzzle pieces to snooze the alarm. At this time, they realize that they all have become late for their respective work. So Tina reached school at later as than usually. She write an essay about the wall incident in the essay test and get a prize by Mrs. Sudipta. So, dear learner, in this story, the main of this characters of the story are that Tina, Miss Sudipta, Deepa, Ajay, Ashu. Uh, he is a Tina's brother, Tina's mother, and Tina's dad means Tina's father. So Tina is the main character in this story. Miss Sudipta is a English grammar teacher, and Deepa and Ajay. They both are a good friend of Tina, and Ashu. He is a brother, Tina's brother. Okay. First, I will learn the first paragraph, and then we going its meaning, and then once again I explain the whole paragraph once again. So, dear learner, please attention on the screen. A whirlpool arrived with a whoosh. Tina was late for class again. Her hair was flying in all directions. Her bag hugged loosely with a huge band. She announced that she had missed the school bus. Not again, Tina, said Mrs. Sudipta, our English teachers. Sorry, ma'am, Tina said meekly. So the Sudipta ma'am said, please, class, open your grammar textbook. Tina sat down in a huff, means very bad mood, and as a special treat, I took out a paper with Sudoku puzzle. I had a copy from the Hindu and placed it on her textbook. She smiled gratefully. After all, what are friends for? Deepa glared at me. Nice friend, aren't you? She whispered shrinkly. She looked at Tina. When are you going to make it to school early? Tina didn't answer. She briskly filled number in row and column. You have an alarm clock right now? Deepa asked to Tina. What's the use of this alarm clock? And my dad and my brother come into my room and yell too. And you can still sleeping through everything? I asked half jealously.
So here, what is the meaning of the whirlpool? See this kind of a quickly rotating mass of water in river or sea into which object may be drawn, typically caused by meeting of conflicting current. And their synonyms are eddy and vortex. ओके, तो ये जो है वो वर्लपूल क्रिएट होता है पानी के अंदर, आपने देखा होगा बेसिकली। उनके बाद यहाँ पे दिया है वुश, मूव क्विकली और सडन विद अ रशिंग साउंड। और आपको पता ही है ये जो वर्लपूल जब स्टार्ट होता है तो ये बहुत खींचता है और सडनली पानी को अपने तरफ खींचेगा। एंड देन ये हग मतलब इसे लटका के रखना। देन अनाउंस मतलब कोई बात को अपना, जैसे अनाउंसमेंट होता है ना स्कूल के अंदर, रेलवे स्टेशन में, वो। सो डियर लर्नर, आपने देखा कि मीनिंग। तो अब देखते हैं फर्स्ट वन एक्सप्लेनेशंस। अ वर्लपूल अराइव विथ वुश। आपको पता है कि जो ये वर्लपूल आता है वो सडनली आता है, पता नहीं चलता है ना। तो उसी तरह टीना के पास भी ये जो मुसीबत आती है वो सडनली आती है, कब बता कर नहीं आती कोई मुसीबत कब आने वाली वो। सो टीना वॉज लेट फॉर क्लास। वंस अगेन क्या हुआ, एज यूजुअल टीना वॉज लेट फॉर हर स्कूल at against. So what happen if we late for school? We doing hurriedly, we do all the things rapidly. Okay, so first of all Tina pack her bag and everything and ready for school, and they run. So what happened, her hair was flying in all directions, है ना। सो टीना जल्दी जल्दी सब पैक करके निकली तो बाल जो थे उनके, हेयर कॉम करना रह गए, थोड़े बहुत अच्छी तरह से नहीं कॉम किए, तो उनके ऑल डायरेक्शन बाल बिखरे हुए थे। हर बैग हग लूजली, मतलब उसकी वो फास्ट फास्ट रनिंग करते हुए स्कूल पहुंचने में उन्होंने जल्दी की, तो वो उसकी बैग भी ऐसे लूज लूज पीछे लटती आ रही, मतलब लटका के आ रही थी वो। विथ ह्यूज पैंट। पैंट का मतलब आता है यहाँ पर, देखो ये एक वर्ड यहाँ पर नीचे दिया ही है, ब्रीथ विथ शॉर्ट एंड क्विक ब्रीथ। मतलब वो आ रही थी, मतलब बहुत थक गई थी और जल्दी जल्दी पहुंचने में उनकी सांस चल फूलने लगी थी। सी अनाउंस दैट सी हैड मिस स्कूल बस। जब मैम ने पूछा व्हाई आर यू लेट वंस अगेन इन स्कूल, सो टीना सेड मैम आई मिस द स्कूल बस अगेन। So Miss Sudipta ma'am said that it's your usual reason, beta. Every time you give this reason, and when you possible to come school early. So मैम वो कह टीना कहते नॉट अगेन मैम, ये दूसरी बार नहीं करूँगी मैं। सो मैम सुदीप्ता मैम कह को सॉरी कह के वो बैठ जाती है। टीना मीकली मिस स्मॉल वॉइस, लो वॉइस में कहते कि सॉरी मैम अब से नहीं होगा। So now the Sudipna ma'am said to the class, please dear student, open your grammar textbook. We are going to start our new chapter. And then Tina sat down in a huff. Huff means bad mood. यहाँ पे आपको दिया ही है, टीना जो है देखो यहाँ पे bad mood. Huff means because she was already late for school, so she sat at a bad mood because Sudipta ma'am scold them na, that's why. As she a special treat I took। यहाँ पे देखो आई मतलब कौन है, उनका बेस्ट फ्रेंड जो था ना अजय, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे अजय जो है वो बीच में, ये आप पिक्चर देख रहे हो, in between the Tina are sitting, and at this side he is Ajay and she is a Deepa. Okay, and you look that Tina is sitting at a huff mood. Huff means in bad mood. So now said I took out a paper with a Sudoku puzzle. Sudoku puzzle तो आपने देखा होगा।
कि जिसके अंदर नंबर्स को फिल करना होता है. I had copy from the Hindu and place it on her textbook. तो ये जो अजय है ना, उन्होंने एक पेपर निकाला, उनके अंदर सुडोको पजल था, गेम खेलना है, जिससे क्या होता है, टाइम पास हो जाता है, आपको बोरिंग भी फील नहीं होता है. I had a copy from the Hindu and place it on her textbook. तो उन्होंने, अजय ने ये सुडोको पजल टीना को दिया. सी स्माइल ग्रेसफुली, तो टीना खुश हो गई कि चलो, मूड तो मेरा ऑफ नहीं हुआ, फ्रेंड्स तो है ही मेरे साथ. आफ्टर ऑल व्हाट आर फ्रेंड फॉर, तो अजय कहता है कि देखो, फ्रेंड किस काम के है, आफ्टर ऑल, है ना, आफ्टर ऑल फ्रेंड किस काम के रहते हैं. दीपा ग्लेयर एट मी, दीपा जो है वो अजय के सामने ग्लेयर कर रही थी, मतलब एंग्री मूड से देख रही थी कि तुम दोनों खेल रहे हो, मुझे तो इन्वॉल्व ही नहीं किया, मुझे तो बुलाया ही नहीं खेलने के लिए. स्टेड इन एन एंगर वे, मतलब ऐसे गुस्से से देख रही थी. नाइस फ्रेंड आरंट यू, कि क्या तुम अच्छे फ्रेंड हो, ऐसा. सी विस्पर्ड श्रींगली, लुक एट टीना. और वो दीपा जो है ना, दीपा जो फ्रेंड, वो टीना के सामने ऐसे लुकिंग कर रही थी, श्रींगली मतलब एंगर वे से, है ना. और श्रींगली का मतलब भी यहाँ पे दिया है, टू बी स्पीक इन एन अनकाइंड काइंड मैनर, ऐसा अच्छी तरह से बात नहीं करना, क्योंकि ओनली अजय और टीना ही सुडोकू पजल खेलने लगे थे, उसको तो बुलाया ही नहीं था, इसलिए. नाउ क्या होता है, व्हेन आर यू गोइंग टू मेक इट स्कूल अर्ली. अब दीपा ये जो सेंटेंस है बोल रही है, स्कूल टू अर्ली, कि व्हाई व्हेन यू गोइंग टू मेक इट पॉसिबल टू स्कूल अर्ली, कि कब तुम अब स्कूल आना आना है, अर्ली करोगी, जल्दी पहुंचोगी. तो टीना है आंसर नहीं दे पाती. सी briskly fill the number in row and column. और वो सी मतलब यहाँ पे टीना की बात हो रही है, टीना जो है वो फटाफट अपने आंसर है ना जल्दी जल्दी फिल कर रही है. ब्रिस्कली का मतलब होता है क्विकली, एंड एनर्जेटिकली, मतलब एकदम जल्दी जल्दी फिल करने लगी वो. यू हैव एन अलार्म क्लॉक, ये कौन पूछ रहा है, दीपा ही कह रही है कि यू हैव एन अलार्म क्लॉक. दीपा जो है ना, जो टीना को कह रही है कि तुम्हारे पास तो अलार्म क्लॉक है ना, तो तुम लेट क्यों करती हो ऑलवेज. और व्हाट द यूज ऑफ द अलार्म क्लॉक, कि ये क्या काम का जो तुम्हारे पास अलार्म क्लॉक है, तो उसका एकदम लेट करती हो तुम स्कूल आने के लिए, तो इनका यूज ही क्या है. देन एंड माई डैड एंड माई ब्रदर कम इन टू माई रूम एंड एल टू, एंड यू कैन स्टिल स्लीपिंग थ्रू एवरीथिंग, आई आस्क हाउ जेलसली. तो ये जो अजय है वो कह रहा है, आई मतलब अजय दीपक को कह रहा है कि भाई चलो जो भी हो, छोड़ो, जो तुम भी कभी कभी सोती रहती हो, तुम्हारे भाई और वो सब आ जाते तो भी, तो ये सब बातचीत चलती रहती है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. She said in a matter of fact tone. Miss Sudipta stared at us. Ajay, do you have any doubt in passive and active voice? Ma'am, Sudipta ma'am said to Ajay. She damned. Oh no, spare me, ma'am. I said myself. Miss Ajay said this sentence. Then Tina, why do you need to place your pencil vertically and horizontally to do your grammar? Tina hastily stopped the Sudoku into another page, and Ajay think I have to shift you. And then Sudipta ma'am said, I think I have to shift you three to the first bench. Sudipta ma'am said this sentence. Someone snickered, means other students are laughing. How some shameful, I thought. Thankfully, a girl finished her exercise. Miss Sudipta took out her pen and got busy. सो डियर लर्नर, आपने यहाँ पे देखा ये सुडोको पजल है.
बाकी रह गया था एक मीनिंग. सो सुडोको पजल मीन्स व्हाट. इसमें क्या होता है 1 to 9 नंबर फिल करने होते हैं. ओके 1 to ये पूरे बॉक्स में, और इवन दैट ये पूरी लाइन में 1 to 9 नंबर होने चाहिए एंड वर्टिकली भी 1 to 9 नंबर आने चाहिए. सो इस तरह से ये सुडोको पजल होता है जिनसे हम हमारी इंटेलिजेंसी और बेस्ट टाइम पास कर सकते हैं. देन whisper means speak softly using one breath rather than one's throat, especially for shake or secretly. So you like that this action, it's called a whisper. इस तरह से बोलना इसको whisper कहते हैं. Then matter of fact means a fact distinct from an opinion or a conjectures. उसके बाद यहाँ पे स्टेयर, मतलब मिस सुदीप्ता मैम जो है ना वो डांट बात ये कुछ भी बात कर रहे थे और कुछ अलग काम कर रहे थे तो स्टेयर कर रहे हैं, मतलब लुक फ्रेडली और वैकेंटली एट समवन और समथिंग विथ वन आईज वाइड ओपन. इस तरह से देखो आप देख रहे हो इसे हम गुस्से की आवाज से, हम गुस्से भरी आंखों से देखना. सो यहाँ पे क्या था कि सी सेड मैटर ऑफ टॉन्स. मिस सुदीप्ता स्टेयर, मिस सुदीप्ता मैम थे ना वो ऐसे स्टेयर मतलब आंखें दिखा के दूर से इशारा कर रहे थे. अजय, डू यू हैव एनी डाउट इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस. ये कौन बोल रहा है? मिस सुदीप्ता मैम कर रहे हैं. क्या अजय तुम्हें कोई डाउट है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस? ये ग्रामर टॉपिक का नेम है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. वो पढ़ा रहे थे क्लास में. तो वो अजय को कह रहे हैं मैम सुदीप्ता मैम कि क्या तुम्हें कोई डाउट है कि तुम इस तरह से बातचीत कर रहे हो. शी डैम मतलब डांट दिया ऐसे. ओ नो स्पेयर मी, ये कहता है अजय कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं मैम. आई सेड टू माई सेल्फ एंड टीना, व्हाई डू यू नीड टू प्लेस यू वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली टू डू योर ग्रामर. तो यहाँ पे सुदीप्ता मैम कहती है कि व्हाई डू यू नीड टू प्लेस योर पेंसिल, कि तुम अपनी पेंसिल में ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रखने की क्या वजह है. ग्रामर के अंदर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है. ग्रामर के अंदर तो एक्सरसाइज सॉल्व करना और लिखना होता है. तुम अपनी पेंसिल को क्यों ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, क्योंकि यहाँ पे वो सुडोको पजल सोल्व कर रही थी. कौन? टीना. तो ये मतलब चेक करने आ गए तो मतलब मैम तो पकड़ लेगी. तो वो फटाफट टीना कह दे स्टफ हैस्टली स्टफ द सुडोको इनटू अनदर पेज. वो ग्रामर की बुक्स के दूसरे पेज में छिपा देती है अपने ये पेज को. I think I have to shift you third to first bench, she said. तो अब जो है सुदीप्ता मैम वो कह रहे हैं कि आई थिंक आई हैव शिफ्ट यू, ये टीना को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें थर्ड से फर्स्ट बेंच में शिफ्ट कर दूं क्या. बट क्या हुआ, समवन स्नीकट, मतलब ये बच्चे दूसरे डाटा तो वो स्माइलिंग स्नीक मीन्स लाफिंग कर रहे थे ना. देखो आपको दिया ही है, laugh in silly or unkind way. How shameful, I thought thankfully. ये जो सेंटेंस how shameful, तो ये अजय सोच रहा है. Thankfully the girl finished her exercise, कि अच्छा हुआ कि टीना ने अपनी एक्सरसाइज खत्म कर ली, अदरवाइज मैम जो थे वो बहुत ज्यादा डांटते. मिस सुदीप्ता took out her pen and got busy. मिस सुदीप्ता जो थे मैम वो अपने काम में बिजी हो गए करने के लिए, क्योंकि उनको भी लेक्चर होते हैं. दैट इवनिंग वी वेंट टू टीनाज हाउस. ओके डियर लर्नर, नेक्स्ट पैराग्राफ में ध्यान दीजिए. दैट इवनिंग वी वेंट टू टीनाज हाउस. आई हैव मेड some hot samosa, I will bring them. This sentence said to Miss Tina's mother said this sentence. I have made hot samosa, I will bring to you. Means all, for all the friends.
Tina's mother said, smiling and warmly, I hope nobody noticed me look at the kitchen with a watering mouth. So this sentence said by Ajay. Deepa was thoughtful as we rode home. It's Tina's birthday on Thursday, na? The means Deepa only thinking about something that on this Thursday the Tina's birthday will be. So how about an alarm clock as a gift? So she is thinking about what we give to gift. So she's thinking about we give to alarm clock because Tina always become a late for school. So Dun, Tina already has one. I ignore means Ajay said this sentence. Do no. Tina already has one. I ignored. But she doesn't have a zigzag alarm clock, does she? Deepa spent the next 5 minutes to describing the clock. Pretty cool. Let's get it. Then I said we searched the shop in Amar Bazar. Still we found what we were looking for, and then an alarm clock. All I have to do is hit the snooze button. Tina laughed. This is no ordinary clock. Just set the time. Tomorrow we will see who come to class first. I said I could already see Tina's mother praising us for our clever idea, a clock to challenge the queen sleeper. The Tina said, grinning. So, dear learner, now look at the meaning. This is called the jigsaw alarm clock. Uh, First, we set the time, and then what happened at a fixed time. This all the pieces are created out means यहाँ से बाहर निकल जाएंगे एंड देन वंस अगेन ये सभी जिग्जो एलर मिल एक पजल को हम अगर इस हम यहाँ पर फिट कर देते हैं बॉक्स पर तभी जाकर ये बंद होगा उससे पहले ये बंद नहीं होता है तो ये एक अलार्म क्लॉक है जिग्जो अलार्म क्लॉक सुन snooze means a short and light sleep especially during the day है ना थोड़ा बहुत आराम करना ये praise तो एक्सप्रेस अ वार्म अप्रूवल और एडमायरेशंस ऑफ इस तरह से कोई हमें प्राइज करता है देखो ये एक्शंस है ना देन ग्रीनिंग मतलब इस तरह से दांत दिखाते हुए स्माइलिंग करना ब्रॉड स्माइल सो नाउ डियर लर्नर अब वापस पैराग्राफ पर आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ अंदर दैट इवनिंग वी वेंट टू टीनाज हाउस यहाँ पर वी कौन मतलब अजय एंड दीपा ये दोनों उनके फ्रेंड थे ना वो वहां पर टीना के घर गए अब देखते आई मेड हॉट समोसा अब ये सेंटेंस कौन बोल रहा है टीना के मदर बोल रहे हैं आई हैव मेड हॉट समोसा कि मैंने बच्चों तुम्हारे लिए हॉट समोसा बनाए हैं आई विल ब्रिंग देम मैं तुम्हारे लिए वो लाती हूँ सो टीना जो है वो स्माइलिंग कर रही है स्माइलिंग वार्मली आई होप मतलब ये आई मतलब कौन अजय के बारे में सोचना है मतलब ये अजय आई होप nobody notice me look at the kitchen with a watering mouth मतलब कि कोई देख नहीं रहा है मुझे कि मुझे समोसा का नाम लिया मुझे मुंह में पानी आ गया ऐसा वो सोच रहा है नाउ दीपा was thoughtfully as we rode home मतलब दीपा कुछ सोच रही है thoughtfully means thinking about something दीपा कुछ सोच रही है तो वो झट से बोल निकले इट्स टीना's बर्थडे ऑन थर्सडे कि टीना का बर्थडे है इस थर्सडे तो क्या करेंगे
तो वो कहते हैं हाउ अबाउट एन अलार्म क्लॉक एज अ गिफ्ट, कि हम अगर अलार्म क्लॉक दे तो टीना को गिफ्ट के तौर पर। सो जो अजय है वो कहता है डू नो, टीना हैज ऑलरेडी वन, कि टीना के पास तो ऑलरेडी एक है ही, उसको देकर क्या अब फायदा है। आई इग्नोर्ड, वो इग्नोर करता है। बट सी डजंट हैव एन जिग्जो अलार्म क्लॉक, पर अजय ये कहता है कि देखो वो तो बात सही है, बट एक बात है कि टीना के पास जिग्जो अलार्म क्लॉक नहीं है। क्या करें, चलो हम इस जिग्जो अलार्म क्लॉक को गिफ्ट दे तो। देन दीपा स्पेंड द नेक्स्ट 5 मिनट टू डिस्क्राइबिंग, तो दीपा जो है वो बता रही है कि जिग्जो अलार्म क्लॉक क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। उसको डिस्क्राइब कर रही थी कि भी कैसे ये होता है। देन अजय कहता है इट्स प्रीटी कूल, कि हाँ ये तो सही बात है, चलो अब ये अच्छा जिग्जो अलार्म क्लॉक है। लेट्स गेट इट देन आई सेड, मतलब अजय कहता है कि लेट्स गेट इट देन, चलो कि तो अब ले लेते हैं, हम लेने जाते हैं। वी सर्च द शॉप इन अमर बाजार, स्टिल वी फाउंड दैट वी वर लुकिंग फॉर। तो वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे, अमर बाजार करके जो एरिया है, सो मतलब जहाँ पे बहुत सारी मतलब ये सब चीज मिल सकती है, ऐसे जिग्जो अलार्म क्लॉक एंटिक पीस। तो कहते हैं कि अमर बाजार हम सर्च करने मतलब ढूंढने जाते हैं, वहां पे मिल जाएगा सब कुछ। तो देखो यहाँ पर ये पिक्चर भी है, दीपा, टीना और अजय एक साथ उनके घर पे है, और उसकी मम्मी उनके लिए हॉट समोसा लेके आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इसमें। इन अलार्म क्लॉक ऑल आई हैव टू डू इट्स हिट स्नूज बटन। देखो हाँ, ये अलार्म क्लॉक में क्या होता है, स्नूज बटन होता है ना, उसको लगाएंगे तो ही होगा, ये अजय बोल रहा है। टीना लाफिंग करती है, टीना लाफ। दिस इज नो ऑर्डिनरी क्लॉक, के देखो ये ऑर्डिनरी क्लॉक, ऑर्डिनरी मतलब ये हमारे जैसा नॉर्मल अलार्म क्लॉक नहीं है, ये जिग्जो अलार्म क्लॉक है, आपने पिक्चर्स में देखा ही है ना। जस्ट सेट द टाइम, के पहले क्या करो, सेट करो टाइम को। एंड देन टुमारो वी विल सी हु कम टू स्कूल फर्स्ट, है ना, अजय ऐसा कहता है। क्या कहता है कि टुमारो, कल हम देखते हैं कि कौन पहले क्लास में आता है, देखते हैं, अब अलार्म क्लॉक मिल गया है ना, देखते हैं कौन पहले क्लास में पहुंचता है। क्या टीना पहुंच सकती है कि नहीं क्लास में। आई सेड आई कुड ऑलरेडी सी द टीनाज मदर प्राइजिंग, तो अजय देख रहा है कि टीना की जो मदर है वो जो है प्रेजिंग, मतलब थोड़ा एकदम वार्म, और उसको कहती है कि वाह बच्चों ये तो बहुत क्लेवर आइडिया है तुम्हारा, ये जो हमारी स्लीपिंग क्वीन है ना, सोने वाली महारानी, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है बहुत। तो टीना है ना वो स्माइल ग्रीनिंगली, मतलब वो ऐसे वाइड माउथ से स्माइल दे रही है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। At a precisely at 6 o'clock next morning, the clock went into action. Four puzzle pieces scattered across the room. A red piece hit Tina, and an ear shattering ring resounded throughout the house. Tina sleepily struck the clock, but it's no any effect. She began her feast on it. It kept ringing. Then she remembered it is not ordinary clock. It is the new alarm clock. She groggily opened her eyes. She found a puzzle piece on the bed. As she looked at it, she realized the wicked scheme of the clock and yelled out in despair. She dearly wanted no snuggle down, but clock was screaming away. She jumped out of bed.
3 more pieces. Tina's brother Asu came into her room and said, "Can't you stop that horrible things?" So Tina said, "Oh, I am really trying to. You see that now? Come and see. If you if you can find 3 puzzle pieces." So Tina said, "I have the red one." Then Tina cries and gritting his teeth. Ashu searched the room and grabbed a blue piece near the cupboard. Tina's mother came into the room and said, "Really, Tina?" She started. And Dad also peeped in what is going on in the Tina's room. Soon, the entire family was searching the room. Is there no way to turn it off? Because it is not an ordinary clock, it is a puzzle, है ना, jigsaw puzzle alarm clock. So no, sniff Tina and smash it. No, it's my gift for my friend. So first of all, we once again go to the hard word, means its meaning. So scattered means occurring or found at a interval or a various location rather than all together. तो आप देख रहे हो कि इस तरह से बेर बिखर हो जाना, है ना, सेपरेट हो जाना, इट्स कॉल्ड स्कैटर्ड. मतलब ये जो जिग्जो पजल के जो थे, जिग्जो ऊपर से पीस, वो अलग अलग जगह पे निकल कर उड़ गए, मतलब हो गए थे. उनके बाद है सैटरिंग, मीन्स वेरी शॉक और अनप्लेस सिटिंग. जब ये कांच टूटा है तो पता है ना, आवाज आती है, वैसे टाइप की जो आवाज है वो, और या तो इस तरह से कोई चीज हैपन होती है. उनके बाद स्लीपी एक वर्ड है यहाँ पे, मतलब स्लीपली मीन्स इस तरह से आंखों को रब करते हुए, आइज को रब करते हुए उठना, है ना. नेक्स्ट जो है फिस्ट. फिस्ट मतलब ऐसे हाथ को मुट्ठी मतलब ये ऐसे मुट्ठी लगाकर जोर से मारना. पर ये तो जब उठी तब वो टीना है उसको हिट करती है. उसके बाद विकड और एविल. विक मीन्स इस तरह से भूतनी जो होती है ना, वो. तो ये वो एक भूत की तरह वो उस अलार्म को देख रहे थे कि ये कैसा आवाज कर रहा है. एल्ड मीन्स साउड इन लाउड, मतलब वो जब उठी तब इस तरह से टीना एल्ड कर रही थी. एल्डेड मीन्स साउटिंग करना. नेक्स्ट जो वर्ड है डिस्पेड मीन्स कंप्लीट लॉस और एब्सेंट ऑफ होप. इस तरह से बैठ बैठ कर कि भाई अब तो इसका कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे बैठ गई थी ना. उसके बाद स्नुगल मीन्स सेटल और मूव इन वार्म और कंफर्टेबल पोजीशन. मतलब बंद करने की जगह पे टीना वापस सो जाती है, इस तरह से स्नुगल्स कहते हैं. देन स्क्रीमिंग, मतलब ये जो अलार्म क्लॉक है ना, पता है ना, स्क्रीमिंग कर रहा था, ऐसे लाउड प्रेसिंग, क्राई, एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम इमोशन और पेन, है ना. तो इस तरह से ये स्क्रीमिंग चिल्ला रहे थी वो. एंड हॉरिबल मतलब बहुत बहुत खतरनाक. कजिंग और लाइकली कज हॉरर और शॉकिंग. आप जब भूत की पिक्चर देखते हो तो हॉरिबल होते हैं वो. सो दैट टाइप ऑफ एक्शन. पिपड़ा मतलब देखना. जैसे टीना के फादर जो है वो टीना के रूम में ऐसे पिपड़ा मतलब देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, ये कहाँ से आवाज आ रही है. और लास्ट में बाद में वो भी ज्वाइंट हो जाते हैं. उनके बाद स्निफ. स्निफ मतलब ऐसे सूंघना होता है. देन once again back to our paragraph. So यहाँ पर क्या होता है, प्रिसाइसली एट 6 o'clock एट नेक्स्ट मॉर्निंग. मतलब दूसरे दिन बच्चों ने तो गिफ्ट दे दिया था अलार्म क्लॉक, तो नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे क्या हुआ, द क्लॉक वेंट इनटू एक्शन. क्लॉक जो है वो एक्शन में होने, मतलब
अब वो जो रखा था, टाइमिंग सेट करके रखा था, वहां पे ही था। 4 पजल पीस स्कैटर्ड अक्रॉस द रूम, मतलब ऐसे बेर बिखेर हो जाना है ना, हमने देखा था मीनिंग में। तो पजल जो थे उनके पीसीस पूरे रूम में से उड़कर वो निकल गए थे। उनमें से रेड जो पीस था वो टीना के बेड पर गिरा था। एंड जो है वो रिंगिंग, और पूरा जो है पूरे हाउस में स्कैटरिंग रिंगिंग, मतलब साउंडेड हो रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी, टिक 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 टिक, जो भी आवाज आती हो। एंड टीना स्लीपली स्टक, मतलब वो अभी तो आंखें से रब कर रही थी। एंड देन नो इफेक्ट, बट कुछ नहीं। सी बिगेन टू फिस्ट ऑन इट, फिस्ट ऑन इट मतलब उन्होंने अलार्म के ऊपर ऐसे जोर से मुक्का लगाया। बट वो रियली तो ऑर्डिनरी क्लॉक तो था नहीं कि चलो वो बंद हो जाए। ओके, इट्स कीप रिंगिंग, बट तो भी ये बंद नहीं हुआ अलार्म क्लॉक। देन सी रिमेंबर, एंड देन व्हाट सी रिमेंबर, दैट इट इज नॉट ऑर्डिनरी क्लॉक, इट इज अ न्यू अलार्म क्लॉक। सो सी ग्रोइंगली ओपन हर आईज, मीन्स एकदम स्लाइटली अनेबल टू क्लियर, देख नहीं पाते हैं ना जब अर्ली मॉर्निंग में आप देखते हो, देखो यहाँ पे ग्रोगली का मतलब अनेबल टू थिंक एंड क्लियर, सोच नहीं पाते कैसे बंद किया जाए इसको। सी फाउंड पजल पीस ऑन हर बेड, उन्होंने एक पीस तो अपने बेड पर देखा कि एक पीस जो है रेड कलर का वो उनके पास है। सी लुक एट इट, सी रियलाइज अ विक्ड स्कीम ऑफ क्लॉक एंड एल इट्स आउट डिस्प्ले, उन्होंने देखा कि एक भूत की तरह ये बज रहा था, भूत आवाज एकदम हॉरर आ रही थी क्लॉक की। और ये पूरी तरह से है ना डिस्पेयर हो चुका था एकदम, एक अलग अलग जगह पे। सी डियरली वांटेड अ स्नगल डाउन्स बट क्लॉक वाज स्क्रीमिंग, वो चाहती थी कि भाई चलो इस तरह से वापस सो जाओ बंद करके, बट अब आवाज तो आ ही रही थी तो कैसे सो पाएगी। सी जंप आउट, और गुस्से होगी, सी जंप आउट ऑफ द बेड, अब वो एंड 3 more पीस ऑन चिल्लाई, वेर इज थ्रो 3 more पीस। एंड ये सुनकर जो है टीना का ब्रदर जो है वो आशु रूम के अंदर आता है। वो कहता है, कांट यू स्टॉप दैट हॉरिबल थिंग्स, क्या ये तुम बंद नहीं कर सकते, इतनी आवाज आ रही है हॉरिबल इनकी। तो कहते हैं कि ओह आई एम रियली ट्राइंग टू, मैं इसको कर रही हूँ, तुम देख रहे हो ना, कम एंड सी इफ यू कैन फाइंड द 3 पजल पीस, चलो अब मेरे को हेल्प करो तुम भी तो दूसरे फाइंड करने में, कि 3 पीस नहीं मिलेंगे तब तक ये बंद नहीं होने वाला है। आई हैव अ रेड वन, टीना कहती है मेरे पास रेड वन तो आ चुका है, अब तुम दूसरे ढूंढने में मुझे हेल्प करो। टीना क्राइड एंड ग्रीटिंग, मतलब ये दांत को पीसना है ना, ग्रीटिंग का मतलब ये होता है नीचे देखो, प्रेसिंग द टॉप एंड बॉटम टीथ टुगेदर एंड ऑफ्टन एंगर, जब गुस्सा आता है ना जैसे जोर से दांत ज्वाइंट करने का मन को गुस्सा आ जाता है। तो आंसू जो है सर्चिंग द रूम एंड ग्रैब्ड अ ब्लू पीस, और तो आंसू को जो है ना ब्लू पीस कहाँ से मिल गया, ग्रैब्ड हुआ, उन्होंने नीचे से झुककर कपबोर्ड के नीचे देखा तो वहां पर एक ब्लू पीसीस पड़ा था, तो वो उन्होंने लगा दिया। देन टीनाज मदर केम इन, और अब टीना की मम्मी आए कि ये क्या हो रहा है पूरे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, ये बंद क्यों नहीं कर रहे अलार्म क्लॉक को। टीना के रियली सी स्टार्ट, और डैड भी ऊपर आ गए उनके रूम में कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, चलो मैं देखता हूँ। सुन द एंटायर फैमिली वॉज सर्चिंग द रूम, अब एंटायर पूरी फैमिली जो है वो ये अलार्म क्लॉक के पीसीस को ढूंढने लगी। देन देर इज नो अदर वे टू टर्न इट्स ऑफ, और दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं था कि इसको बंद किया जाए, है ना। नो स्निफ द टीना स्मैश इट, वो कहते कि चलो इसको बंद कर देते, तोड़ देते, स्निफ में तोड़ दूं, तो वो कहते नहीं 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 इसको तोड़ना नहीं है, ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दी है मेरे बर्थडे पर, सो इसको तोड़ना नहीं है। तो इस तरह से ये इवेंट हैपन होता है इस पैराग्राफ में। देन नेक्स्ट, आशु पॉन्च ऑन येलो पजल पीस अंडर द टेबल, आई गॉट वन, डैड सेड, डैड को भी मिल गया, एंड वेविंग अ ग्रीन पीस एज इफ ही हैज वॉन द लॉन्ड्री,
It was a very special occasion with a trembling hand and they fit the piece together and place it on the clock. The family rejoins over the silence, but only for a moment. They start at the time, then at each other. It was a 7 o'clock. Oh, अब टीना को remember हुआ. I have not prepared my lunch. I have not had bath yet. My basketball practice यार बहुत सारा है ना. So now इनके मीनिंग देख लेते एक बार. सो अपने लॉन्ड्री एक वर्ड आया तो आपने देखा होगा कि मीन्स ऑफ राइजिंग मनी बाय सेलिंग नंबर ऑफ टिकट्स एंड गिव प्राइस टू हूम होल्डर ऑफ नंबर ड्रोवन रैंडमली. तो आपको पता है ना ऐसे लॉन्ड्री की टिकट खरीदनी होती है और अगर जो इनमें से आपका नंबर लग जाए बाय चांस तो आपको वो लॉन्ड्री के पैसे मिल जाते हैं. और ये तो नर्वस तो थी. तो इस एक्शन को हम नर्वस कहते हैं. सो देखो आप आशु पहुंच द येलो पजल. पहुंच मतलब ऐसे उसको मिल गया टेबल के नीचे से आशु उसके ब्रदर को. एंड आई गॉट वन, वो कहता है कि मुझे, और डैड कहते हैं कि आई ऑल्सो गॉट वन, मुझे भी मिल गया है वो. तो आशु को 2 पीस मिले. एक ब्लू कलर का उन्होंने कपबोर्ड के नीचे से ढूंढा था और दूसरा यहाँ पर येलो पजल का पीस भी उन्होंने टेबल के नीचे से ढूंढा. एंड देन डैड ने ग्रीन कलर का ढूंढ लिया. और डैड तो जो है वो एकदम हाथ हिलाते हुए एंजॉय करते हुए पूछ मतलब हैप्पी होते हुए कहते हैं कि यस आई गॉट वन ग्रीन पीस. और उनके बाद हुआ क्या कि ये तो एक प्रोवोकेशन हो गया कि सुबह सुबह सब लोग खाना पीना वो सब छोड़ के सीधा ये अलार्म क्लॉक को क्लोज करने के लिए लग गए. एंड देन व्हाट हैपन विद ट्रम्बलिंग हैंड्स फीट. धीरे धीरे फटाफट सबने पीस को ज्वाइंट किया एंड प्लेस it on the clock. And then what happened, then family rejoins over the silent. अब जाकर पूरी जगह घर में शांति हुई. पर जब तक ये हुआ उससे तब तक पूरा टाइम वेस्ट हो चुका था. अब जो है वो 7 बज चुके थे. अब टीना को रियलाइज हुआ कि ओ मेरा लंच भी प्रिपेयर नहीं है, मैंने बाथरूम मतलब नहाया अभी नहीं है अभी तक. ओ आज तो मेरी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस थी मॉर्निंग में. सब कुछ वेस्ट हो गया. Now what happened in the next paragraph? Back in school. अब टीना जो है वो स्कूल में आ जाती है. We were wondering why Tina had not come early even after our brilliant effort. Tina came later than usual. She cast the really dirty look at us and I was looking at her. We were having an essay test and you Tina can write about why you came late to school today in 1000 words. Today we will deal with you. Miss Sudipta said this. Later, during the recess, we heard the whole story. I got very nervous. What if the Tina's mother was so angry that she never invited us to have a samosa or anything? A terrible thoughts. However, Miss Sudipta put the things right next day. I felt I like bowing low to her. Very creative essay, Miss Sudipta said. I should say to Tina. And Tina, jigsaw clock any date, something imaginations, and and for you. Tina smiled at broadly and said, "Come today, come home today. My mom is making kheer today." And she whispered. I was thrilled to her that. So last paragraph में देखते हैं कि बैक टू स्कूल मीन्स टीना आज भी लेट पहुंची बट आज तो कौन वी आर वंडरिंग वी में कौन ये दीपा और अजय दोनों सोच रहे कि वाई
Tina late once again. We do the brilliant effort. Even that we give that jigsaw alarm clock now, even not possible to come school early, है ना. So टीना आज भी नहीं आई. और आज तो देखा कि टीना came later unusual. वापस तो लेट तो आई. She cast really dirty look. एकदम डर्टी लुक था. ऐसा अजय सोच के देख रहा है, कह रहा है. आई वोट अवॉइडेड लुकिंग एट हर. मतलब जो अजय है वो टीना के सामने देखना पसंद नहीं करता है, कि वो देखना नहीं चाहता. वी आर हैविंग एन ऐसे, अब ये सुदीप्ता मैम बोल रहे हैं यहाँ से. वी हैव एन ऐसे टेस्ट एंड यू टीना कैन राइट अबाउट व्हाई यू केम लेट टू स्कूल टुडे 1000 वर्ड. ओके, तो ये जो मैम मिस सुदीप्ता है वो कह रहे हैं कि आज तो है ना ऐसे टेस्ट भी है, और तुम ऐसा करो, तुम एक ऐसे लिखो, वाई यू कम लेट टू स्कूल टुडे, और वो भी 1000 वर्ड में. और इस तरह से मैम कहते हैं कि आई विल डील विथ यू, कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुम्हारे साथ कुछ करना ही पड़ेगा, तुम्हें सजा देनी पड़ेगी. लेटर ड्यूरिंग रिसेस वी हियर अ वॉल स्टोरी. मतलब इसमें वी में कौन आएगा, दीपा एंड अजय दोनों टीना के पास रिसेस में आते और पूछते कि भाई क्यों तो वापस तू लेट हो गई आज, तुम्हें तो अलार्म क्लॉक तो दिया था ना. देन आई गॉट वेरी नर्वस. मतलब अजय नर्वस भी था. आई गॉट वेरी नर्वस, ये अजय का है सेंटेंस. वॉट इफ द टीनाज मदर वॉज सो एंग्री. और वो अजय सोच रहा था कि अगर क्या सोचेगी टीना की मम्मी, गुस्सा करेगी तो अब हमें वो कभी भी इनवाइट नहीं करेगी समोसा और कुछ कोई भी चीज़ के लिए. और हमने तो अलार्म क्लॉक दिया और वही अलार्म क्लॉक ने लेट करवाया पूरे हाउस को. आगे बढ़ते हैं. और टेरिबल थॉट्स, वो तो अजय कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं. अब आगे क्या होता है. मिस सुदीप्ता पुट थिंग्स राइट द नेक्स्ट डे. वेरी क्रिएटिव ऐसे. मिस सुदीप्ता कहते हैं कि वेरी क्रिएटिव ऐसे, तुम्हें ऑनर भी मिलेगा, तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया ऐसे में. आई शुड से टीना जिग्जो क्लॉक इन डेड some imagination and for you टीना स्माइल ब्रॉडली. कि चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ तुम्हारे लिए हमने एक तो जिग्जो पजल दिया जिनकी वजह से लेट तो हुआ, बट रियल में ट्राई करना कि इस जिग्जो अलार्म क्लॉक की मदद से तुम वापस अपने शेड्यूल में आ जाओ. देन लास्ट में जो है टीना कहती है कम होम टुडे, कि मेरे घर पे आना. मॉम इज मेकिंग खीर. ये पूरा सेंटेंस टीना बोल रही है कि आज वापस हमारे घर पे आना, मम्मी आज खीर बना रही है. एंड सी विज प्राइड, मतलब वो खुश होकर ऐसे आगे चली गई. आई वॉज थ्रिल्ड टू हियर दैट. और अजय है ये सुनकर, आई मीन्स अजय मीन्स अजय ये सुनकर मतलब एकदम खुश हो जाता है कि चलो हाँ कोई इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टीना के पास. So dear learner, as we know that once again we briefly explain this entire lesson once again. As we know that Tina was late for class at again as usual, and her hair was flying all direction, and her bag used loosely, and she Miss Sudeep, and she announced that ma'am, I missed the school bus, that's why I will I was I reach at school late. So Miss Sudipta said, Miss okay, but that's your usual things. So Tina said, sorry ma'am, I never do it again. Then Ma'am Sudipta ma'am said, please dear class open your grammar book and we are going to start our lessons. And on that time when Mrs. Sudipta explaining the grammar topic, the Ajay and Tina both solve the Sudoku puzzle. And on that time Deepa grell at Ajay, and she said that to Tina, when you going to make it possible to school early. And say on that time the Tina didn't answer the questions of Deepa.
Then what happened? Then uh, Tina filled the number in row and column in Sudoku puzzle. And what happened? Uh, on that time, Miss Sudipta ma'am said to Ajay, "Do you have a doubt in active and passive voice?" Then Ajay said, "No, ma'am, I haven't any query." And then once again, Miss Sudipta ma'am said to Tina that why are you need to place your pencil vertical or horizontal. Now is grammar topic is going on, है ना? But now as you know that Tina is doing a means solving a Sudoku puzzle. So she put her stuff the Sudoku into the another page and start and writing the exercise. Then period is over and Miss Sudita ma'am went out from the class. And then the same day that evening, what happened? Deepa and Ajay went to the Tina's house. So at that place, Tina's mother made hot samosa. So Tina's mother offered to them to samosa, and on the same time the Deepa thinking about something like on Thursday the Tina's birthday is there, so what gift we to give to them, give to her. So they're thinking about alarm clock. So Ajay said, Tina have already has a alarm one has one alarm clock. So then this thinking about a Zigzag alarm clock. Because now it is better idea that we gifted her to a Zigzag alarm clock. So Deepa explained how the Zigzag alarm clock work and describe everything. And then they decide to purchase the Zigzag alarm clock, and all the friend went to Amar Bazar and they found the one Zigzag alarm clock. And what happened next? Then they means think about alarm clock and talking, and they gifted him. So Tina's mother very excited and said, "Wow, it's very clever, good gift. It's clever idea that you give Zigzag alarm clock to my queen sleeper, because she is always sleeping all the time and she become a late to school as usually." So now what happened? Next morning, the 6 o'clock, the alarm clock went into the action, and the four puzzle pieces scattered across the room, and the uh, alarm clock ringing. So on that time, one pieces from them, like the red pieces found by the Tina, and then uh, brother came to and said that please try to be stop these horrible things. So Tina said, I am really trying to it. You see that now? And then her brother also rejoined to searching the Zigzag alarm pieces. And then uh, Asu found one blue piece under the cupboard, and her father and her mother also joined to searching the alarm pieces. And then uh, her brother Asu once again found a yellow puzzle piece under the table, and dad also announced that I also got green pieces. And what happened? The entire family rejoined the piece on the alarm clock, and finally, the alarm become a silence. So, on seeing that, they realize that it's
7, it was 7 o'clock. So once again entire family become a late for their as usual work, and Tina think about my lunch is not ready, and that I am not doing bathing, my basketball practice also left. And then she reached at school, but what happened, the essay test was that. So Miss Sudipta ma'am said, today is our essay test, uh, test, and now you write essay about why you came late to school today. And Tina write essay. Then Ajay and Deepa uh, both are thinking about we are doing brilliant effort, and not possible to not possible for Tina to come to school early. And then entire story is done. Then Ajay thinking that what happen if Tina's mother not invited, have to samosa or anything. But as a last, Tina said to that come to home today, my mother making kheer. So this way, dear learner, we finish our chapters. I hope that you enjoy this chapter and understood very well.